Hello students, welcome in the lecture 5 of electricity. In this lecture, you will understand about the series connection of resistors. Do subscribe the channel, like it and put your comments if any doubt. Example 12.5 was being asked by several students to be solved. So I'm solving it for you. Length was given 1 meter. Resistance was given 26 ohm. 26 ohm resistance was given at temperature of 20 degrees Celsius, which is simply a room temperature. We need not bother about the temperature given. The diameter of the wire is given as 0.3 mm. The whole catch of the question lies in this diameter. Diameter is 0.3 mm. We have to convert it into radius first, 0.15 mm. Then we have to convert it in meters, because with meters only we have to tackle as SI unit of length is meter. Radius, now area of cross section is pi r square. As I told you, usually we take the wire in a cylindrical form, so mouth of the wire or the area of cross section remains as pi r square. Pi r square 3.14 into 0.15 into 10 to the power minus 3 whole square. 3.14 value of pi and 0.15 into 10 to the power minus 3 as the value of radius. We'll put a square sign over here. I hope this much is all clear. Length was given, resistance was given, diameter was given in mm. First we went to radius, found the radius in meters, then found the area of cross section. Now the formula is R equals to rho L upon A. We know R equals to rho L upon A. 26. First we can convert in terms of resistivity. Rho equals to R into A upon L. Now resistance is 26. Area of cross section is given as 3.14 into 0.0225. 0225 into 10 to the power minus 6 whole upon 1. The length doesn't matter. It doesn't matter that length is 1 meter. We can remove the denominator without anything. So when you will be solving it, make a product of it. You'll find it. अब ये R की वैल्यू, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ मैंने 1 मीटर थी, डिनोमिनेटर नहीं शो किया, 1 मीटर का कोई शो नहीं करना होता. 26 इंटू 3.14 81.64 आया, और फिर इसका 0.0225 से प्रोडक्ट किया, 1.8369 आया. 10 टू द पावर माइनस 6 एज इट इज चल रहा है. रो का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है. अब इस चीज को राउंड ऑफ करोगे, ये 7 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो 1.84 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6 ओम मीटर. अब हम लोगों को टेबल 12.2 एग्जाम में दिया होगा. 12.2 से कंपेयर करके देखो, ये किसकी रेजिस्टिविटी है, ये मैग्नीज की है. तो मैग्नीज का आप नाम लिख दो, ये मैग्नीज की रेजिस्टिविटी है, तो मटेरियल यूज मस्ट बी मैग्नीज. सिर्फ इतना सा करना था इस एग्जाम्पल 12.5 में. फिर भी समझ में ना आए तो मेरे से दोबारा पूछ लेना. अच्छा, नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद आवर न्यू टॉपिक, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. हमें अपना नया टॉपिक शुरू करना है, रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. ये रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, ये हम लोग अपना पेज 209 से अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं. सेकंड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर ये 10th 1 बैच के लिए बन रहा है, और 10th 2 में तो लाइट चल रहा है. तो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, इसमें दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एक सीरीज का, एक पैरेलल का. दो तरह के सिस्टम्स हैं, एक सीरीज सर्किट, एक पैरेलल सर्किट. सीरीज सर्किट क्या होता है, व्हेन करंट हैज ओनली वन पाथ, देन all devices in that path are in series connection. तो जितने भी डिवाइसेस, व्हेन करंट हैज ओनली वन पाथ, अगर मोर देन वन भी है तो फिर वो अलग सिस्टम हो जाएगा, अलग कनेक्शन हो जाएगा. व्हेन करंट हैज ओनली वन पाथ, देन ऑल डिवाइसेस इन दैट पाथ आर इन सीरीज कनेक्शन. और पैरेलल क्या कहता है,
पैरेलल कहता है व्हेन करंट get distributed then all those paths in which current is distributed become part of parallel connection. ये कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है, ये जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है. इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि व्हेन करंट हैज ओनली वन पाथ देन ऑल डिवाइसेस इन दैट पाथ आर इन सीरीज कनेक्शन. अभी हम इस पे डिटेल में जाएंगे. और पैरेलल व्हेन करंट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड देन ऑल दोस पाथ इन विच करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिकम part of parallel connection. In series connection, I have drawn this circuit. See, from the battery, positive terminal, current starts moving. A switch is being kept. Then I have put the fuse. Fuse आप लोगों के घरों में होता है ना, कटआउट लगा हुआ होता है, या तो सिंपल फ्यूज लगा हुआ होता है. जिस फ्यूज को हमेशा सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है ताकि अगर पूरे सर्किट में एक्स्ट्रा करंट आ जाए तो फ्यूज वायर जल जाए, और फ्यूज वायर जलने से पूरा सर्किट ब्रेक डाउन हो जाए, पूरे सर्किट में कहीं पर भी करंट का फ्लो ना हो पाए. तो फ्यूज हैज टू बी पुट इन सीरीज. अब देखो यहाँ से करंट को ये रास्ता मिला, इसी रास्ते में फ्यूज पड़ा, इसी में R1 रेजिस्टर पड़ा, इसी रास्ते में R2 रेजिस्टर पड़ा. ये रास्ता चेंज नहीं हुआ है, ऊंचा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है बट रास्ता सेम है. R3 रेजिस्टर उसी में पड़ा, बल्ब भी उसी में पड़ा, एमीटर भी उसी में पड़ा. एमीटर भी हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वी आर नोन टू इट. फिर यहाँ से करंट आगे बढ़ा, R4 रेजिस्टर मिला टेढ़े मेढ़े रास्ते से, रास्ता लेकिन चेंज नहीं हुआ. R5 रेजिस्टर भी मिला और वापस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच गया. तो ये पूरा सीरीज कनेक्शन है. इसमें पांचों रेजिस्टर्स, बल्ब, एमीटर, फ्यूज, स्विच, ये सब कुछ आपस में सीरीज में लगा हुआ है. करंट को कहीं पर भी डिवाइड नहीं होना पड़ा. अब हम लोगों के 3 रूल्स ऑफ सीरीज कनेक्शन. इन रूल्स को एकदम ऐसे याद कर लेना है कि बिल्कुल हमसे कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए इन रूल्स में. सबसे पहला रूल हमारा क्या है? करंट on all devices remain same or constant in a series connection. जो भी सीरीज कनेक्शन है, ये सीरीज कनेक्शन की पहचान के रूप में हमने तुम्हें बताया था. हालांकि और भी बहुत सारी पहचान है, लेकिन मैं सबसे आसान पहचान यही पिकअप करता हूं. जो उसका फर्स्ट रूल है वही मैंने तुम्हें पहचान में बता दिया कि करंट ऑन ऑल डिवाइसेस रिमेन सेम ऑन और कांस्टेंट इन अ सीरीज कनेक्शन. नंबर 2, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट ऑन ईच रेजिस्टर ऑफ सीरीज कनेक्शन. यानी कि वोल्टेज जो है वो सीरीज कनेक्शन के सभी पार्ट्स में डिवाइड होता चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा. इस R1 पे कोई V1 वोल्टेज होगा, इस R2 पे कोई V2 वोल्टेज होगा, इस R3 पे कोई V3 होगा. हालांकि इस बल्ब पर भी वोल्टेज का कोई डिस्ट्रीब्यूशन पहुंचेगा सीरीज कनेक्शन में, इसको भी कोई V4 मिलना चाहिए. लेकिन हम लोग चूंकि बल्ब का, एमीटर का, फ्यूज का, स्विच का, इनका रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स का ही रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं. इसलिए V3 इसका मैंने V4 माना, इसका मैंने V5 माना. ऐसे 5 पार्ट्स में वोल्टेज डिवाइड हुआ. अगर लॉजिकली पूछा जाए तो क्या इस पे भी एक सेपरेट वोल्टेज आएगा? यस. क्या इस पे भी एक सेपरेट वोल्टेज आएगा? यस. इसको कोई मामूली सा वोल्टेज V डैश, इसको कोई V डबल डैश, जो कुछ सीरीज में है उन सबके पास अलग अलग वोल्टेज पहुंचता है. तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट ऑन ईच रेजिस्टर ऑफ सीरीज कनेक्शन. यहाँ रेजिस्टर की जगह में अगर वर्ड डिवाइस भी लिख दूं तो भी मैं अप्रोप्रिएट बोल रहा हूं कि हर डिवाइस पे, हर स्विच पे, हर जगह पर, anything whatever is being there in the series connection, everywhere the voltage get distributed. अब तीसरा रूल यहाँ ऊपर लिख रहा हूं. तीसरा रूल, जो थर्ड रूल है, वो कहता है रेजिस्टर्स इन सीरीज आर added to obtain equivalent resistance. जितने भी रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं उन्हें
आपस में ऐड किया जाता है। EQ का मतलब इक्विवेलेंट से, EQ डॉट मैंने यहाँ सबस्क्रिप्ट में लिख दिया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। मैंने पांचों यहाँ पे रजिस्टर्स के हिसाब से 5 लिखे हैं, ज्यादा होते तो ज्यादा लिख दिए जाते। तो रजिस्टर्स इन सीरीज are added to obtain equivalent resistance. Resistors in series are added to obtain equivalent resistance. Equivalent मतलब total resistance. अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस इन सब की चाहिए तो हम सारे रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस जोड़ देंगे। एक बार फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, बल्ब, एमीटर, फ्यूज सबकी अपनी खुद की भी एक रेजिस्टेंस होती है। दे आर ऑल्सो लाइक डिवाइसेस, बट हम लोग अपने वर्किंग में उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जो गिवन रजिस्टर्स हैं उन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं। तो तीनों बातें एक बार फिर से रिपीट कर लो। ये तीनों रूल्स सीरियल ऑर्डर में अपनी कॉपी में जिसमें नोट्स बना रहे हो उसमें उतारोगे। करंट ऑन ऑल डिवाइसेस रिमेन सेम और कांस्टेंट इन अ सीरीज कनेक्शन। दूसरा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच रजिस्टर ऑफ सीरीज कनेक्शन। अच्छा, इस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन वाले में चूंकि हमने रजिस्टर्स में 5 जगह दिखाया है, तो V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, ऐसे 5 पार्ट्स कर लो। एक जो वोल्टेज इस बैटरी द्वारा V वोल्टेज दिया गया होगा, वो V वोल्टेज पांचों पार्ट्स में, पांचों रेजिस्टर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। और रेजिस्टर इन सीरीज आर एडेड टू ऑब्टेन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पांचों को सीधा सीधा ऐड कर दिया जाता है टोटल रेजिस्टेंस ऑब्टेन करने के लिए। साफ साफ उसको कॉपी में उतारें। हमने सीरीज कनेक्शन के तीनों रूल्स के बारे में बात कर लिया। फर्स्ट रूल हमारा क्या था, I इज कांस्टेंट, है ना। अब ये शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, सब लोग कॉपी में शॉर्ट ना लिख देना, पूरा पूरा डिटेल लिखना। दूसरा क्या था, V इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जितने भी जगह पर रजिस्टर्स होंगे सब पर V डिस्ट्रीब्यूट होगा। और तीसरा रूल हमारा क्या था, R इक्विवेलेंट ऑब्टेन करने के लिए जितने भी रजिस्टर्स आपके सीरीज में है सबको डायरेक्टली ऐड कर दिया जाता है। मैं डॉट 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 इसलिए लगा रहा हूँ, जितने भी रजिस्टर्स या जितने भी रजिस्टर्स हैं उतने ही नंबर ऑफ वोल्टेजेस भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये 3 रूल एकदम दिमाग में सबके सेट हो जाने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन इन दीज 3 रूल्स, ठीक है। अब हम लोग जरा ओम्स लॉ के बेसिस पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि ओम्स लॉ का किस तरह से प्रूफ किया जा सकता है इन सीरीज रजिस्टर्स में। अब इन सीरीज कनेक्शन, you verify Ohm's law in series connection. Verify Ohm's law in series connection. हम लोग Ohm's law को सीरीज कनेक्शन में वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमने एक जो रजिस्टर R1 था, हमने माना कि एक सिंपल सर्किट है, एक सिंपल सा सर्किट है, इसमें हमारे 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ चलो एक डिवाइस लगा देते हैं, बल्ब लगा दिया, यहाँ एक एमीटर लगा देते हैं और यहाँ एक स्विच भी लगा देते हैं। सर्किट थोड़ा सा डिजाइन लगना चाहिए। अब ये हमारा R1, R2, R3 ये हमारे 3 रजिस्टर्स हो गए, राइट। अब ये R1, R2, R3 रजिस्टर्स हैं, इन 3 के टर्म्स में हम लोग वेरीफाई करते हैं। तो जो R1 रजिस्टर होगा इस पर कोई V1 वोल्टेज होगा, जो R2 होगा उस पर कोई V2 वोल्टेज होगा और R3 होगा उस पर V3 वोल्टेज होगा, राइट। और सब पे जो करंट जा रहा है वो सब पर I ही जा रहा होगा। तो हमने सबसे पहले माना V1 I R1, ओम्स लॉ एट R1 रजिस्टर, ऑन R1 रजिस्टर। फिर ऑन R2 रजिस्टर V2 इक्वल्स टू IR2। अब ऑन R3 रजिस्टर, अब जितने दिए होते रजिस्टर उनके हिसाब से हो जाता है, अगर और दिए होते तो हम लोग और भी नीचे लिखते जाते हैं। V1, V2, V3 इस तरह से हमारे 3 हो गए। अब यहां पे हम लोगों ने V नो या एडिंग पहले कर लेते हैं, एडिंग 1, 2 एंड 3, ये तीनों इक्वेशंस है हमारी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एडिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों को ऐड किया तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। ये सीधे सीधे लिखना तुम लोग, मेरे पास बोर्ड छोटा है। अब V1, V2, V3 तीनों को हम लोग V लिख सकते हैं, यहां से I कॉमन ले लें, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा। अब यहां पर जो आ गया ये R1, R2, R3, इसको हम लोग V I R1, R2, R3 तीनों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए टोटल R बोला जाता है, तो इट बिकम्स V इक्वल्स टू IR। यानी ओम्स लॉ इज बीइंग वेरीफाइड ऑन ईच रजिस्टर in a series connection and it is also being verified on the whole circuit as well। सीरीज के हर रजिस्टर के ऊपर भी ओम्स लॉ ट्रू है
और जब हम इसको ऐड कर दें तो फुल सीरीज कनेक्शन पर भी ओम्स लॉ ट्रू रहता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। दोबारा से रिप्ले करके देख लेना, अगर ना समझ में आए तो फिर मुझे अलग से बता देना कि नहीं आया सर समझ में। अच्छा, इस पे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, सब लोग थर्ड वीडियो में ही क्वेश्चन करेंगे। एक मैंने क्वेश्चन के रूप में दिया, ये मानो ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये एक R1 रजिस्टर है, ये एक R2 रजिस्टर है, ये एक R3 रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ मीटर भी लगा देता हूं और यहाँ पर एक स्विच भी लगा देता हूँ। R1, R2, R3 तीन रजिस्टर्स लगा दिए, यहाँ एक बल्ब भी लगा देता हूँ, सर्किट पूरा डिजाइन कर दिया। अब ये मेरा 4 ओम का है, ये मेरा 6 ओम का है और ये मेरा 8 ओम का है। ठीक है, और आपको उसमें सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालो, टोटल रेजिस्टेंस निकालो, फिर आई निकालो सर्किट का, फिर वोल्टेज ऑन R1, R2 एंड R3, ये तीन पार्ट्स आपको करने हैं। आर इक्विवेलेंट के लिए तीनों ऐड करके निकाल दोगे, आई के लिए ओम्स लॉ लगा दोगे, पूरी आर इक्विवेलेंट लोगे, वोल्टेज 12 वोल्ट लोगे। फिर वोल्टेज ऑन R1, R2, R3 के लिए अलग अलग, V1 इक्वल्स टू आई R1, V2 इक्वल्स टू आई R2, V3 इक्वल्स टू आई R3 सॉल्व करके इसके आंसर्स मुझे बताओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपने क्या किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये कितना होगा, 4 प्लस 6 प्लस 8, कितना हुआ 18 ओम। पहले आर इक्विवेलेंट आ गया। अब आई इक्वल्स टू V अपॉन R बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हमने इसको कनेक्ट किया। अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वोल्टेज 12 दिया है, 18 आया, 2/3 0.67 एम्पियर्स, ये हमारा करंट आ गया। नाउ V1 इक्वल्स टू आई R1, तो आई 2/3 लिया, R1 अपना 4 लिया, 8/3 वोल्ट। V2 इक्वल्स टू आई R2, 2/3 इंटू 6 कट गया 4 वोल्ट। V3 इक्वल्स टू आई R3, 2/3 इंटू 8, 16/3 वोल्ट। ये 8/3 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2.67 वोल्ट। ये 4 वोल्ट पूरा है और ये 3/16 है, 5 टाइम्स जाएगा, 5 15.15 10 3 ले लेते हैं, तीनों का सम चेक कर लो, 5 9 11, इन दोनों का एक 12, पूरा 12 वोल्ट है। जो 12 वोल्ट हमारा पूरी बैटरी का था वो इन तीनों का सम हो गया। तो वोल्टेज ऑन R1 इज 2.67, वोल्टेज ऑन R2 इज, लास्ट में एक लाइन लिखोगे, सो वोल्टेज ऑन R1 इक्वल्स टू 2.67 वोल्ट, R2 on R2 is 4 volt and on R3 is 5.33 वोल्ट। सब ऐसे क्लास स्टेटमेंट में अपना क्वेश्चन एंड अप करोगे। आई होप एवरीवन मस्ट हैव अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। अब इसका हम लोग और ऐसे न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं। मैं आपको रजिस्टर्स अलग अलग दे रहा हूँ और आपको ये होमवर्क के न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ। आपको V की वैल्यू 18 वोल्ट और रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, यू कैन मेक योर ओन कनेक्शन, मतलब अपना सर्किट खुद बना लेना। R1 एक 2 ओम का है, R2 8 ओम का है और R3 10 ओम का है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन रिमेन सेम, आर इक्विवेलेंट निकालना है, करंट इन द सर्किट निकालना है और सारे रजिस्टर्स पे अलग अलग वोल्टेज निकालना है। सेकंड क्वेश्चन V 220 वोल्ट का है, R1 तुम्हारा 50 ओम का है, R2 तुम्हारा 60 ओम का है और R3 तुम्हारा 100 ओम्स का है। थर्ड क्वेश्चन, अब की बार वोल्टेज है तुम्हारा 110 वोल्ट, इस बार R1 है 1 ओम का, R2 है तुम्हारा 0.5 ओम का, R3 है तुम्हारा 8 ओम का, R4 है तुम्हारा 12 ओम का। 4 लगा दिए इसमें। फोर्थ क्वेश्चन, वोल्टेज है इस बार तुम्हारा 48 वोल्ट, R1 तुम्हारा 2 ओम का, R2 तुम्हारा 5 ओम का, R3 तुम्हारा 6 ओम का, R4 तुम्हारा 8 ओम का,
R5 तुम्हारा 10 ओम का। फिर लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, वोल्टेज इसमें दिया मैंने तुम्हें 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट पे R1 तुम्हारा 1 ओम, R2 तुम्हारा 50 ओम, R3 तुम्हारा 500 ओम, R4 तुम्हारा 100 ओम, R5 तुम्हारा 50 ओम, और इसमें R6 भी कनेक्ट कर लो। R6 is 2 ओम। 2 नहीं दिया ना, हाँ नहीं दिया, 2 ओम। R6 is 2 ओम। तो फिफ्थ वाले क्वेश्चन में 6 हैं। R1 1 ओम, R2 50 ओम, R3 500 ओम, R4 100 ओम, R5 50 ओम और R6 2 ओम। आपको ये पांचों क्वेश्चन होमवर्क में करने, विल डिस्कस अबाउट देयर आंसर्स। Here I end with my video 4 and I end with my class 5.